Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, some of our subscribers are asking me, sir, start guidance sessions for RBI Assistant also. We want to prepare for RBI Assistant exam that may happen this year. Now, as far as whether RBI Assistant will happen or not, only time will tell. But since last year process is almost now over, 2019, we can expect RBI Assistant exam in this year or early 2022. So if we remain ready for the exam, naturally we can crack it. It is a tough exam. Why we call it tough? Because number of vacancies are less, and due to less number of vacancies, cutoffs are normally very high in RBI Assistant exam. Secondly, the type of candidate those appear for this examination is also existing employees as well as new job seekers, and that makes the competition very tough. If we look at the last year, the cutoffs across India, the cutoff was above 90, with the exception of Maharashtra, where vacancies were low. It was shade below 90. But this year again, the cutoffs may touch 90 level in RBI Assistant examination as and when it will happen. So if you are unemployed right now, my advice will be focus on softer examinations first. That means SBI clerk, PO, IBPS clerk, PO, IBPS RRB officer, and IBPS RRB office assistant. That should be your first target. If you are already employed and having one job in pocket, and now you want to improve upon your salary structure, then you should focus for RBI Assistant. Because it should not happen while preparing RBI Assistant, you may ignore the easier examination and you may remain unemployed at the end of year. So this is important, and that's why as a pre-suggestion I am telling this. We are starting this series, RBI Assistant Preparation. One video per week I will post. So right now you will use the existing mock tests that is available in the annual plan of our series. Link is available in description and comment column. Click the link, take the annual plan. In annual plan, you will get RBI Assistant Pre and Main Mock Test 2019 series. And you will get 2021 series also as and when notification will come and if exam happen. Because fresh mocks will only be available if exams will happen. But if you will join in this month, naturally your validity of annual plan is 1 year. So within 1 year, we can very well expect RBI Assistant examination, and you can be gainer of it. But till such time, you can only use 2019 mocks, because fresh year series will only start if notification comes, not before that. So this is one thing but this is available in the existing plan, because in existing plan you are already having mocks for SBI, you are having mocks for IBPS, you are having plans for IBPS RRB, so you are not taking any additional plan. Existing plan is helping you. Only thing is, if you are focusing on RBI Assistant, you can access the RBI Assistant 2019 series also. In pre, there are 3 parts: English language, numerical ability, and reasoning ability. The marks are 30 for English, 35 for each section. So there is a total 100 marks. So if I have to get 90 out of 100, that means if I score 35 in numerical ability and reasoning, it only adds to 70. That means I must score 20 plus in English to remain in race. So for RBI Assistant, the key factor that distinguish between one candidate and another is knowledge of English. So if you can focus on English, you can improve English, you are a contestant for RBI Assistant. Okay. So link of mock test I have provided you in description and comment column.
take the annual plan and attempt first mock test of 2019 series of RBI assistant, and you will come to know where you stand. So if most of you are already having annual plan, so in the same plan you can have access. But if you are not having this plan till now, take annual plan, click the link, register and join the mock test series. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आरबीआई असिस्टेंट के बारे में मैंने वीडियो एक डाली, जिसके बाद कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी भी हमारी करा दीजिए। देखिए, अब 2019 का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उससे ये बड़ी संभावना बन गई है कि 2021 में आरबीआई का असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 2021 के अंत तक हो जाए, चाहे 2022 के शुरू में हो जाए, पर ये एग्ज़ाम होने की संभावना काफ़ी अधिक है। अब क्योंकि ये संभावना है, तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या हम अभी से तैयारी शुरू कर दें और हमें फ़ायदा होगा। उनके अनुरोध पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हफ्ते में एक वीडियो हम आरबीआई असिस्टेंट प्रिपरेशन की बनाएंगे, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आपको उसमें मदद हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है, अभी तक जिनका एम्प्लॉयमेंट नहीं आया है, उनको पहले फोकस करना चाहिए सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम्स पे। मैं उनको एडवाइस नहीं करूँगा कि वो सीधा आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी पे जुट जाएं। उनको पहले एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर और आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, कट ऑफ लोअर होता है, तो आपको जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और आरबीआई की तरफ मूव करना चाहते हैं, उनको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी शुरू करनी चाहिए, वो आरबीआई के लिए सोच सकते हैं। पर जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं, उनमें से जो लोग समझते हैं कि हम इसको कर पाएंगे, वो इसको तैयारी करें, क्योंकि तैयारी सिमिलर लाइन पे है, पर थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई होता है। पर क्योंकि आपकी एंजाइटी है, आप चाहते हो शुरू करना, तो हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। 2019 में भी हमने समय रहते शुरू कर दी थी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब काफ़ी लोग तो कहते थे आएगा ही नहीं नोटिफिकेशन, और वो मैं हमेशा कहता था आएगा। तो जब नोटिफिकेशन आया, उसके बाद बहुत कम टाइम मिला, तो जो लोग मेरे शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे, उसमें से काफ़ी लोग आरबीआई असिस्टेंट क्रैक करने में कामयाब हुए। और मुझे खुशी है कि पिछली सिलेक्शन में भी इस चैनल के काफ़ी लोग आरबीआई में प्लेस हो गए। तो आप भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया है। उसी प्लान में, जो आपके पास ऑलरेडी प्लान है, जिन लोगों ने एनुअल प्लान लिया हुआ है या हाफ ईयरली प्लान लिया हुआ है, उसी प्लान में आरबीआई के 2019 असिस्टेंट के मॉक्स भी उपलब्ध हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। 2021 के मॉक्स तभी आएंगे अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो उससे पहले नहीं आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के आसपास ही उस पैटर्न पे देख के कि क्या वो एग्ज़ाम का पैटर्न रख रहे हैं, मॉक्स बनाना ही यूज़फुल होता है। तो अगर आप प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं तैयारी, तो आप 2019 को बेस बनाकर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन की वेट करना चाहते हैं, ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं आज से वीकली एक वीडियो डाल के आपकी तैयारी शुरू करा रहा हूँ। तो 2019 का फर्स्ट मॉक टेस्ट आज आप अटेम्प्ट कर लीजिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिया, ठीक है, उसको आप क्लिक करिए और वहाँ से इसको यूज़ कर लीजिए। जिनके पास एनुअल प्लान ऑलरेडी है या हाफ ईयरली प्लान है, उनके पास ये मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली उपलब्ध है। जिन्होंने अभी तक ये प्लान नहीं लिया है, वो आज सब्सक्राइब कर ले। इसके अंदर आपको एसबीआई के मॉक्स भी मिलेंगे, आईबीपीएस के भी मिलेंगे, आईबीपीएस आरआरबी के भी मिलेंगे और आरबीआई के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पुराने मॉक्स अभी मिल रहे हैं, उससे आप काम चलाइए। मगर इसमें आप ध्यान रखिए कि
जो पेपर है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है, 30, 35, 35 ये कॉम्बिनेशन है 100 नंबर का। अब अगर कट ऑफ 90 से ऊपर है तो इसका अर्थ क्या है कि अगर आपके 35 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में आते हैं तो 70 ही बनते हैं। अगर 20 से अधिक इंग्लिश में आएंगे तभी आप 90 का आंकड़ा पार करेंगे। दैट मीन्स जो लोग इंग्लिश में स्ट्रांग हैं वही स्ट्रांग कंटेंडर है आरबीआई असिस्टेंट के। कई लोग बार बार कहते हैं कि हम हिंदी में करना चाहते हैं, और वो ठीक है, मगर जब तक आप इसमें इंग्लिश से नहीं सीखेंगे या इंग्लिश के अंदर अपने आप को महारथी नहीं बनाएंगे तो ये एग्ज़ाम पार करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो पहले से विचार कर लीजिए, अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छे लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं तो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करिए। अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर कम इंग्लिश की नॉलेज से भी आप पास हो सकते हैं, जैसे आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं या आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हैं या एसबीआई के एग्ज़ाम्स हैं, उन पे फोकस करिए। ठीक है, तो आप तैयारी आज से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट आप कर लीजिए, उसमें से अपनी कमियां ढूंढिए और फिर अपना टाइम टेबल बना के तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए। मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। ग्रामर बुक आपको इंग्लिश में मदद करेगी, एनसीईआरटी की बुक्स आपको मैथ्स में मदद करेंगी, और रीजनिंग के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कि रीजनिंग कैसे डेवलप की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारा मटेरियल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया है, उससे आप काम शुरू कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।